पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या यही है या नहीं है, ये ढूंढने के लिए देखो, फर्स्ट रिप्रेजेंट द एक्स, सेकंड रिप्रेजेंट वाई। हमारे पास अगर रेडियस रिप्रेजेंट हो रही एज अ ए से स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो एलएचएस को सेटिस्फाई करा के देखो बेटा। x यानी कितना है, तो a cos थीटा, यानी ये बन गया a cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कॉमन क्या, तो a स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1, देयरफॉर दिस इज a स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू a स्क्वायर। जब हम लोग वैसे ही पैराबोला की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या, y square is equal to 4ax, this is the equation of standard parabola। क्या ये पैरामीटर्स डालने के बाद सेटिस्फाई होगा? सो LHS which is a y square that is equal to twice at square and twice at square is 4a square t square। Move to the next one, RHS which is nothing but the 4ax, 4a keep as it is and x means at square, this become 4 a square t square from 1 and 2, LHS is equal to RHS, it means this also correct। Now move to the third one, ellipse। What is the equation of ellipse? Equation of ellipse is x square upon a square plus y square upon b square and this value is equal to how much, so is equal to 1। Now LHS again in the form of x square upon a square plus y square upon b square is equal to, what is your value of a is equal to a cos theta, so this become a square cos square theta upon a square plus value of y b sin theta, it means b square sin square theta upon b square। Now b square a square get cancel, what is left, cos square theta plus sin square theta and which is equal to 1, yes, which is our required RHS। Similarly, when we are discussing about the hyperbola which has the equation x square upon a square minus y square upon b square and is equal to how much, so 1, डालो value beta, a square secant square theta upon a square minus b square tan square theta upon b square। Now here a square b square get cancel, what is left, so secant square theta minus tan square theta। जिन लोगों के लिए किंतु परंतु है उनके लिए secant square theta nothing but 1 plus tan square theta minus tan square theta plus minus tan square theta get cancel, what is left, so is equal to 1। यानी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स जो है वो ध्यान में रखोगे। एंड मूव टू द नेक्स्ट वन कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा डायरेक्ट वैल्यूज डाल के डिफरेंशिएट करा के फिर मैक्सिमम मिले। सो फर्स्ट वन, इफ द सर्कल इज दिस अ स्टैंडर्ड सर्कल, सो नो, x square plus y square plus twice dx plus twice fy plus c is equal to 0, then the tangent is given by this equation xx1 plus yy1 plus g in a bracket x plus x1 plus f in a bracket y plus y1 is equal to 0। For the parabola which is in the standard form, y square is equal to 4ax, tangent is given by, ये आपको लर्न करना होगा, y1 is equal to twice a in a bracket x plus x1। When we are talking about the ellipse which having the equation x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1, स्टैंडर्ड बोल रहे हैं हम लोग। सो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बन सकता है बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू
हाउ मच, सो 1। तो टेंजेंट देखो क्या हो रहा है। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द हाइपरबोला having the equation x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1. This is all about the equation of tangent at any point. Now ये सब थ्योरी होने के बाद, कंसेप्ट होने के बाद ट्राई करके देखते हैं एक 2-4 क्वेश्चन आज के वीडियो के लिए, क्या हम लोग वो करने के लिए एबल है या नहीं। क्वेश्चंस देख लेते बेटा। सी फॉर द कर्व, कर्व क्या फॉर्म लेके चल रहा, y इज इक्वल टू एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, द पॉइंट क्या क्या कर रहा है, 4 अलग अलग पॉइंट ऑप्शन है हमें, मिनिमा, मिनिमा, मैक्सिमा, मैक्सिमा। अभी मिनिमा मैक्सिमा निकालने के लिए डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। देखो जो कंसेप्ट बोले ना मैंने कि कंसेप्ट ध्यान में रख, ये ऐसे होते हैं कंसेप्ट। जब मैंने ऑप्शन देख लिया, सो फ्रॉम द ऑप्शन आई जस्ट गेस कि मुझे डबल डेरिवेटिव तक जाना है। सो सी अगर बोला y इज इक्वल टू एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, therefore dy by dx is equal to first function derivative of second function derivative of first function। क्या कॉमन हुआ, तो यहाँ पे e to the power x 1 plus x कॉमन हुआ ना, 1 plus x क्या हो गया यहाँ पे कॉमन हो गया। अभी हमारा मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए f डैश ऑफ x की वैल्यू कितनी लिया करते बेटा हम लोग, सो 0 लिया करते। ये अगर 0 हो गया इसका मतलब आपको पॉसिबिलिटी मिल गई 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू हाउ मच, तो x इज इक्वल टू -1। वैल्यूज देखो हो रहा है। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो d2y बाय dx स्क्वायर। फिर से एक बार डिफरेंशिएट, यहाँ पे अगर मैं लूँ तो 2 अलग अलग डेरिवेटिव्स ले लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x। अब भी निकाला है ना, डेरिवेटिव ऑफ x e टू द पावर x कितना आया था, तो e टू द पावर x 1 प्लस x एंड डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x इज e टू द पावर x। व्हाट इज कॉमन, e टू द पावर x, what is left in a bracket, so 1 plus x plus 1 which is nothing but the e to the power x 2 plus x। हमें ढूंढना है फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है। नाउ अगर मैं डाल दूं बेटा x इज इक्वल टू -1, सो d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू e टू द पावर -1, 2 -1, it becomes e to the power -1 which is nothing but the 1 upon e। वैल्यू कैसे हुई, तो वैल्यू पॉजिटिव हुई। किसकी वैल्यू पॉजिटिव हुई, डबल डेरिवेटिव की। एंड व्हेन द वैल्यू ऑफ डबल डेरिवेटिव दैट इज f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0, फंक्शन कैसे होता है, मिनिमम होता है। कौन से पॉइंट में मिनिमम हुआ, तो एट x इज इक्वल टू -1 पॉइंट कैसे हो गया, पॉइंट हैज द मिनिमम। सिमिलरली अभी सवाल कुछ बच्चों के जहन में घूम रहा होगा, मैडम ये क्या है, तो बेटा इन द सम ऑफ द टेक्स्ट बुक, इन सम ऑफ द एग्जामिनेशन मैंने जानबूझ के वो लिखा। देखो ये जो इंटरवल्स है ये सबको पता है और इन्हें हम लोग कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल और इसे हम लोग कहते हैं ओपन इंटरवल। पर इन द सम ऑफ द टेक्स्ट बुक, इन द सम ऑफ द नोट्स, यही ओपन इंटरवल कुछ इस तरीके से डिनोट, 2 साइडेड 2 लोग चले जाते, ठीक है ना, ना इसको लेना है ना इसको लेना है, यही बताने के लिए मुंह फेर लिया दोनों ने कि बीच वाले आ जाओ, ना तू पहला आएगा ना तू एंडिंग का आएगा, तो वो रिप्रेजेंट करे। ठीक है, चलो देखते क्या बोल रहा क्वेश्चन। f ऑफ x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ x, sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x इंक्रीजिंग है। फंक्शन कैसा है, तो इंक्रीजिंग है। और इंक्रीजिंग देखो क्वेश्चन पढ़ते बराबर वही के वही पे आंसर पटापट दे देना। फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव की वैल्यू कैसे रहने को होना, ग्रेटर देन 0। चलो देखिए बेटा,
इफ आई हैव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मैं उसे लिख सकती हूँ ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर हमारा फंक्शन चल रहा अभी साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x, तो इसको मैं लिखूंगी साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स एंड इट्स स्क्वायर, विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आंसर क्या जाने को होना, तो आंसर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एंड इट्स होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। बन गया ऐसा फॉर्म। पर हमारी ट्रिग्नोमेट्री हमें बताती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना, तो 1, 1 का स्क्वायर कितना, तो 1, तो 1 हुआ, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। देखो अगर मैं 2 के जगह पे 4 लिखूं ना, तो मुझे बैलेंसिंग करवाना होगा, यानी 1/2 यहाँ पे 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। बन गए इतने टर्म्स, यानी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एंड दिस टर्म 1 minus 1/2, दिस इज द 2 sin x इंटू कॉस x एंड इट्स होल स्क्वायर। पूरे इसका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। मूव 2 sin x इंटू कॉस x, दिस इज द फॉर्मूला फॉर, किसका फॉर्मूला है बेटा ये, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर sin 2x एंड इट्स होल स्क्वायर विच इज द f of x। पर हमारा फंक्शन तो इंक्रीजिंग है ना, और इंक्रीजिंग है, इसी का मतलब f डैश ऑफ x कैसा है, तो ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब डिफरेंशिएशन करना होगा। f डैश ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ 1 0 माइनस 1/2 डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x स्क्वायर कितना हुआ, तो 2 साइन 2x। डेरिवेटिव ऑफ दिस साइन 2x इज cos 2x एंड डेरिवेटिव ऑफ, किसका डेरिवेटिव लेना होगा बेटा, और डेरिवेटिव ऑफ sin 2x is cos 2x and derivative of 2x is simply 2. It means this is in the form of 0 minus, see here 2 2 get cancel, this is the formula for sin 4x. फिर से वापस जाओ, we getting f dash of x is equal to minus sin 4x, but as the function is increasing derivative is greater than 0। पर ये नहीं हो सकता, निगेटिव टर्म कभी भी ग्रेटर देन 0 नहीं हो सकती, तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस साइन 4x ग्रेटर देन 0, that is also be written as sin 4x less than 0। उसे छोटा बना लिया, माइनस साइन को निकाल लिया। अगर साइन 4x लेस देन 0 है, इसका मतलब हुआ आपका साइन फंक्शन कैसे है, निगेटिव है। देखो बेटा लॉजिकली जाओ, वक्त लग रहा अपन कंसेप्ट क्लियर करो। अगर आपका साइन फंक्शन निगेटिव है तो सोचो साइन निगेटिव कहाँ कहाँ पे, तो इन द थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक, तो पाई से लेके तो 3π/2, और फोर्थ क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक, तो 3π/2 to 2π तक। इसका मतलब ये जो साइन 4x निगेटिव चल रहे, ये कहाँ से कहाँ तक सरवाइव कर रहे, पाई से लेके 2π तक। आ गया ना बेटा, पाई से लेके 2π में आपके 2 क्वाड्रेंट ही कवर हो गए, दैट इज थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। कितना है, साइन 4x है, थ्रू आउट जाओ, सो π/4 लेस देन साइन 4x अपॉन 4 लेस देन 2π/4, सो π/2, 2π/4 का मतलब हुआ ये π/2, और यहाँ पे कौन है π/4। क्या मैंने लेस देन और इक्वल टू लिखा तो नहीं, और जब लेस देन और इक्वल टू नहीं
इसका मतलब क्लोज इंटरवल के जगह कौन से इंटरवल में आ गए हम लोग, लाइज इन द ओपन इंटरवल. सो बॉक्सेस चेंज π/4 to π/2. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन नंबर 3. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व. कौन से कर्व के लिए कर रहे हैं हम लोग, तो टू द कर्व y इज इक्वल टू x प्लस 4/x². डेरिवेटिव निकालना होगा. इट मीन्स dy/dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x1 डेरिवेटिव ऑफ 1/x². कितना होता है 1/x², दैट इज -2/x³. वैल्यूज दो. सो दिस टर्म बिकम -8/x³. पर हमारा फंक्शन जो है वो पैरेलल किसे चल रहा है. So function is parallel to x-axis, and when the function is parallel to x-axis, slope कितना हो जाएगा बेटा, slope 0 हो जाएगा. slope 0 इसी का मतलब dy/dx 0, इसी का मतलब 1 - 8/x³ is equal to 0. So x³ - 8 is equal to 0. It means x is equal to कितना, तो x is equal to simply 2. ये 2 वाली वैल्यू डाल के देखो y में क्या मिल रहा हमें. तो सो दिस इज 2 + 4/2². दैट इज 2 + 4/4. 2 + 1 विच इज इक्वल टू 3. वैल्यू ऑफ y, तो y इज इक्वल टू कितनी वैल्यू मिली, 3. कहाँ से ढूंढे, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दिया था, किसको पैरेलल था, एक्स एक्सिस को. और जैसे कि हमें पता है when the two lines are parallel slopes are equal, और लाइन अगर उसमें भी एक्स एक्सिस को पैरेलल है तो स्लोप कितना हो गया, स्लोप इज इक्वल टू 0. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. f ऑफ x कैसा है, फिर से फंक्शन, तो फंक्शन इंक्रीजिंग है. फंक्शन इंक्रीजिंग है, इसी का मतलब डेरिवेटिव कैसे हुआ, तो ग्रेटर देन 0. आपको डेरिवेटिव निकालना होगा. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यूजिंग द क्वोशंट रूल. सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ, इसका डेरिवेटिव देना होगा a sin x 2 cos x. दो बेटा डेरिवेटिव बनेगा a cos x -2 sin x. ठीक है. सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस a sin x plus 2 cos x, and derivative of second one is derivative of sin x cos x, and derivative of cos x minus sin x upon denominator square. So cos x plus sin x its whole square. इसका क्या बन गया, whole square. फिर से वही इंक्रीजिंग है वैल्यूज. चलो सॉल्व करते. साइन एक्स इंटू ए कॉस एक्स, तो ये बन गया बेटा ए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. सेकंड बना -2 साइन स्क्वायर एक्स. फिर थर्ड टर्म बनी आपकी प्लस ए कॉस स्क्वायर एक्स. फिर माइनस ए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. टर्म को देख लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड आपके पास 3 टर्म आ गए. साइन एक्स इंटू दिस साइन एक्स इंटू ए कॉस एक्स. फिर सेकंड 2 साइन स्क्वायर एक्स. फिर थर्ड ए कॉस स्क्वायर एक्स. और उसके बाद माइनस यहाँ पे -2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. बचे हुए 2 ब्रैकेट्स के लिए करते बेटा, -8 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. उसके बाद नेक्स्ट टर्म है हमारे पास की a इंटू दिस, जो माइनस माइनस प्लस a साइन स्क्वायर एक्स. प्लस माइनस का ध्यान रखना. उसके बाद -2 cos स्क्वायर एक्स, एंड देन अगेन माइनस माइनस प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. कौन से वैल्यूज कट गए वो देखो. सो यहाँ पे क्लियर दिख रहा, प्लस a sin x माइनस कैंसल, देन +2 माइनस गेट कैंसल. व्हाट इज लेफ्ट, -2 sin square x
-2 cos square x. -2 को बाहर लिया, so in a bracket sin square x plus cos square x which is equal to 1. A cos square x plus a sin square x, a common in a bracket 1 or upon denominator square which is greater than how much? So greater than 0 because function is increasing. Cross multiplication हो गया, we are getting a minus 2 greater than 0 which is a greater than 2 lies in our option number D. Now move to the next question. Now next question, the value of a. किसके लिए ढूंढना है? The value of a for which y is equal to x square plus ax plus 25 touches the which axis? So touches the x axis. तो एक एक टर्म की बात करेंगे बेटा. सबसे पहले y is equal to x square plus ax plus 25. डेरिवेटिव दे दो, so dy by dx which having the value twice x plus a. पण यहाँ पे किसे टच कर रही है? तो टचेस टू द x एक्सिस. और अगर ये x एक्सिस को टच करे इसका मतलब स्लोप हो गया आपका 0. सो ट्वाइस x प्लस a दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0. ये वैल्यू कितनी हो गई हमारी? इज इक्वल टू 0. इट मीन्स वी आर गेटिंग x इज इक्वल टू माइनस a अपॉन 2. ठीक है. अभी ये x की वैल्यू इफ any point x1 is on the locus so it satisfy the equation of locus. इसका मतलब यहाँ पे डाले माइनस a अपॉन 2 स्क्वायर प्लस a इंटू माइनस a अपॉन 2 प्लस 25. नाउ वैल्यूज माइनस a अपॉन 2 a स्क्वायर अपॉन 4. दिस इज माइनस a स्क्वायर अपॉन 2 एंड प्लस कितना बेटा? तो प्लस 25. इधर उधर वैल्यूज को लेके चलते. सो दिस बिकम यहाँ पे हो गया a स्क्वायर माइनस ट्वाइस a स्क्वायर अपॉन 4 प्लस कितना है? 25. a स्क्वायर माइनस ट्वाइस a स्क्वायर मिला के बन गया माइनस a स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 25. ठीक है ना. पर हम लोग कौन से एक्सिस पे है? सो वी आर लाइज ऑन द एक्स एक्सिस. और x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी होती है? तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू होती है 0. नाउ सी आगे बढ़ते बेटा. दिस इज माइनस a स्क्वायर प्लस 100 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0. सो 4 मल्टीप्लाइंग बाय 0 इट्स अ 0. यानी माइनस a स्क्वायर प्लस 100 इज इक्वल टू 0. a स्क्वायर इज इक्वल टू 100. We are getting the value a is equal to plus minus 10. a की वैल्यू कितनी हुई? तो plus minus 10. Move to the next question. बराबर पढ़ो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 को. All are based on the concept only. The values of parameter a so that the line is normal to the curve. अभी जैसे कि हमें पता है अगर कोई लाइन किसी दूसरे लाइन के साथ नॉर्मल बना रही, इसका मतलब नॉर्मेलिटी के साथ प्रोडक्ट ऑफ स्लोप कितना हो जाता है? -1. और वन स्लोप इज अ रेसिप्रोकल ऑफ अदर स्लोप विद द चेंज ऑफ साइन. सबसे पहले बात करते हैं कर्व की विच इज x इज इक्वल x इंटू वाई इज इक्वल टू 1. देयरफॉर y इज इक्वल टू 1 अपॉन x. देयरफॉर dy बाय d x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. ये स्लोप किसका हुआ? चीजों को समझो बेटा. ये स्लोप किसका हुआ? तो दिस इज द स्लोप ऑफ कर्व. पर हमें तो स्लोप ऑफ नॉर्मल होना है. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होगा? रेसिप्रोकल विथ चेंज ऑफ साइन. यानी -1 अपॉन एक्स स्क्वायर के जगह पे स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना बन गया? तो सिंपली एक्स स्क्वायर. अभी चीज ये है अगर ये स्लोप एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर नेवर बी नेगेटिव. यानी वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 0 होगी. बढ़ते हैं हमारे टर्म के तरफ. लाइन का इक्वेशन क्या है? 3 माइनस a इंटू एक्स प्लस ए वाई प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू कितना? तो इज इक्वल टू 0. अभी देखो बेटा
स्लोप कैसा है, तो ग्रेटर देन 0 है यानी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे स्लोप बन जाएगा 3 माइनस ए अपॉन ए एंड दिस वैल्यू आल्सो कैसे हो जाएंगे, ग्रेटर देन 0। बात समझ में आ रही? नाउ ये a इधर गया यानी 3 माइनस ए ग्रेटर देन 0, इट मीन्स अवर वैल्यू ऑफ a ग्रेटर देन कितनी हो जाएगी, 3। ये कुछ ऐसा हो रहा बेटा, माइनस ए ग्रेटर देन -3, इसी का मतलब a लेस ग्रेटर देन कितना हो रहा, माइनस माइनस साइन को निकाल ली। नाउ अगर a ग्रेटर देन 3 है तो कौन सा इंटरवल कवर होगा, 3 से बड़े नंबर्स कहाँ तक, तो अप टू द इंफिनिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द पैराबोला, कौन से पैराबोला पे कोऑर्डिनेट्स देखिए, दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x whose distance from the circle is, डिस्टेंस कितना है, तो मिनिमम है, डिस्टेंस मिनिमम है, तो मिनिमम है इसका मतलब डबल डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी होने को होना, गुड, ग्रेटर देन होने को ना। देखो बेटा y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x मैच विथ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, सो 4a इज इक्वल टू 8, therefore a इज इक्वल टू सिंपली 2। a की वैल्यू कितनी हो गई, तो 2 हो गई। therefore कोऑर्डिनेट्स ऑफ, जो मैंने एकदम स्टार्टिंग में सिनॉप्सिस में बताया था, कोऑर्डिनेट्स ऑफ, किसके कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं, पैराबोला। क्या दिया जाता है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पैराबोलाज आर at स्क्वायर ट्वाइस 80, पर a की वैल्यू कितनी है, तो 2 है, यानी ये क्या बन जाएगा, ट्वाइस t स्क्वायर कॉमा 2 इंटू 2, ये बन गया 40। वैल्यूज को ध्यान में रखो बेटा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सर्कल की। ये तो 2 कंफर्म पॉइंट हो गए। सर्कल के लिए जब जा रहे हैं तो एक एक टर्म को यहाँ पे भी निपटाएंगे। इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, क्या दिया हुआ है इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 6 स्क्वायर एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू कितनी है, 1। क्या ये स्टैंडर्ड है, तो बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब ये कैसे होगा, x माइनस 0 स्क्वायर प्लस वाई माइनस माइनस 6 स्क्वायर एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1, बन गया। कोऑर्डिनेट्स क्या है रे बेटा, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कल, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कल पहला कोऑर्डिनेट 0 और दूसरा कोऑर्डिनेट -6। अभी ये 2 कोऑर्डिनेट के बीच का हमें क्या निकालना है, तो हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या रहता, तो अकॉर्डिंगली चलो, डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस बेटा, सो ट्वाइस t स्क्वायर -0 होल स्क्वायर और सेकंड प्लस 4t -6 एंड इट्स स्क्वायर हो गया। आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट वैल्यूज आर देयर, ट्वाइस t स्क्वायर का स्क्वायर हो रहा, इसी का मतलब हुआ 4t स्क्वायर पहले टर्म। सेकंड में जब हम लोग करा रहे हैं तो ये बन रहा 16t स्क्वायर, 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 2 इट्स अ -48t एंड प्लस कितना, तो प्लस 36 हो गए वैल्यूज। क्या कुछ कॉमन निकल सकता है यहाँ से, देखिए, तो हर एक टर्म में से 4 बाहर निकल सकता है। हर एक टर्म में से 4 अगर बाहर है तो t टू द पावर 4 प्लस 16t स्क्वायर के जगह पे बन जाएगा आपका 4t माइनस 12t एंड प्लस कितना बेटा, तो 9 हो गए। इतने सब चीज क्लियर। अगर मैं d के जगह पे d स्क्वायर ले तो टर्म बिकम 4 इन अ ब्रैकेट t टू द पावर 4 प्लस 4t स्क्वायर माइनस 12t और प्लस कितना, तो प्लस 9। अभी आपके सर्कल के इक्वेशन में वापस जाओ, इसे सॉल्व करो।
नाउ इज देयर एनी फैक्टर्स, तो फैक्टर्स ढूंढने पड़ेंगे हमें। पहला तो हमारे पास हो गया t2, चलो टर्म्स कैसे बन जाएंगे, 1 4 -12 एंड 9। सो अकॉर्डिंगली जब हम लोग वैल्यूज देंगे बेटा, सो वी आर गेटिंग द टू नंबर्स विच हैविंग इन द फॉर्म ऑफ मिनिमम वैल्यू 2,4। बढ़ते हैं टुडेज लास्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 8। f of x इज इक्वल टू कितना है, f of x that is equal to x cube minus 3x square, then move onward minus 105x and plus 25। फंक्शन कैसा है, तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। और फंक्शन डिक्रीजिंग, देखो यहाँ पे क्या हुआ था, मिनिमम बोला था, मिनिमम है, इसका मतलब जहां पे हम लोग रुके थे वहां से आपने और एक बार डेरिवेटिव लेना था, और आपका डेरिवेटिव कैसे आने वाला था, ग्रेटर देन 0। गेट इट माय पॉइंट। अभी यहाँ पे फंक्शन कैसा है, तो फंक्शन डिक्रीजिंग है, यानी f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 105। क्या कुछ कॉमन बेटा यहाँ से, तो 3 बाहर ले लिए, इन अ ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 3x माइनस यहाँ पे हुआ आपका 3 3 एंड 3 5। ठीक है, दो फैक्टर्स ढूंढने पड़ेंगे, सॉरी यहाँ पे 2x माइनस 2x, टू फैक्टर्स, सो 3 इन अ ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35। सो 3 इन अ ब्रैकेट x माइनस 7 प्लस 5 इन अ ब्रैकेट x माइनस 7। So therefore 3 in a bracket x minus 7 and x plus 5. Function is a decreasing, it means less than 0. So less than 0 के लिए दो possibilities जा रहे बेटा आपके, x minus 7 it's a less than 0 and second one x plus 5 less than 0. So x less than 7 and second x लेस देन -5। -5 से छोटे और 7 से भी छोटे ऐसे नंबर्स, so accordingly you get your option. Now this all about the basics synopsis of application of derivative. कल मिलेंगे with the something new questions based on application of derivative.